سکھاؤ، طریقہ تم سکھاؤ، فاطمہ کا طریقہ سے عمل تم سکھاؤ، یہ تو تم سے ہوتا نہیں ہے۔ کالجوں میں بھیج دیا، وہاں پتہ نہیں کیا کیا سیکھ کے آتی ہے، پھر اپنے گھر میں آ کے کلیس کرتی ہے، پھر جھگڑا کرتی ہیں، فساد کرتی ہیں۔ ابھی میں اس پہ آؤں گا نا، میں ایک شعر دے کے بات مکمل کر کے جاؤں گا۔ ایک بار پیش کی ساتھ کہہ دے سبحان اللہ۔ کہ سخن سے اپنی لٹاتا ہے پیار کی خوشبو، سخن سے اپنی لٹاتا ہے پیار کی خوشبو، وہ جس نے دل کو مدینہ بنائے رکھا ہے، وہ جس نے دل کو مدینہ بنائے رکھا ہے، وفا و مہر کا گلشن کھلائے رکھا ہے، وقار زیست کا آنگن سجائے رکھا ہے، اور ہمیں بلائیے سرکار کیا بات، اب تو روزے پر، ہمیں بلائیے سرکار اب تو روزے پر، ہمیں بلائیے سرکار، انہیں بلائیے سرکار، انہیں بلائیے سرکار اب تو روزے پر، انہیں بلائیے سرکار اب تو روزے پر، انہیں بلائیے، انہیں بلائیے سرکار اب تو روزے پر، کہ ہم نے دل کو مدینہ بنایا، کہ ہم نے دل کو مدینہ بنائے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، بولو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اللہ کے مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہو؟ آؤ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، جس سے میں بڑا پرسدھ ہوا ہوں، بڑا فیمس ہوا ہوں، بڑا مشہور ہوا ہوں، ملینوں کی پار ہے، تقریریں سنا ہوگا۔ اب ایک صاحب نے کہا تھا، مولانا صاحب ایک پنڈت بھی تھے شاید، انہوں نے کہا تھا مولانا صاحب اتنا بڑھیا پڑھ رہے ہو تو نمبر دیتے جاؤ، تو میں بھی کوئی رٹو والا تو ہوں نہیں، اسی میں نمبر سیٹ کر دیا تھا، اسی میں سیٹ کر دیا۔ تو سنو، اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، جب وہ تو ایک بار بڑی بات سمجھ میں آئے گی، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ایک ہے، تنہا ہے بھائی، زمین آسمان چاند سورج ستارے فرش عرش کرسی، یہ تخت یہ منبر یہ عالم یہ حفاظ یہ عوام یہ ماں اور بہنیں، سب کا مالک کوئی تو ہے۔ اللہ، کون ہے؟ اللہ، اونچا بولو کون؟ اللہ، اللہ عزا وجل کی ذات ہے۔ پنڈت جی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا ایک منتر تمہارے یہاں پڑھتے ہیں بھگوت گیتا میں، بار بار اس کو پڑھتے ہیں، ذرا اس کا معنی بتائیں۔ تو پنڈت جی نے اوپر سے نیچے دیکھا، بولا مولانا تو مولانا ہے، میں پنڈت۔ میں نے کہا جو میں سوال کر رہا ہوں وہ تمہاری کتاب سے ہے، اب ان کی کتاب سے نہیں۔ اگر اب ان کی کتاب سے کرنا ہوتا تو علامہ سراج سے یا علامہ سے پوچھتے یا اپنے استاد سے پوچھتے، لیکن تم سے پوچھ رہا ہوں۔ تو پنڈت جی بولے بتاؤ کیا؟ میں نے کہا تمہارے یہاں جب بھاگوت بیٹھتی ہے نا تو ایک جملہ کہتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں اس کو، آپ نے شاید سنا ہوگا، اگر اس علاقے میں یا اس بستی میں ہندو بھائی رہتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا، وہ جملہ کون سا ہے؟ کہو تو پڑھ کے سنا دے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنے نا، یہ چینل کے ذریعے، رزاقی چینل کے ذریعے سے میری آواز پوری دنیا کے مسلمانوں اور علماء کو، خطبہ کو، نقبہ کو پہنچ جائے، کیونکہ جب ہم رامائن بھاگوت گیتا پڑھتے ہیں یہ نہ سمجھے کہ ہمارا ایمان وہی ہے، ہمارے لیے بس اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کافی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، کیونکہ آپ طرح طرح کے لوگ انگلی اٹھاتے ہیں،
कुरान काफी है। ये टाइटल जरूर डालिएगा, जो डालने वाला हो वो टाइटल डालिएगा। लिहाजा सुनिएगा, क्या पंडित जी बोले बताओ ना, मैंने कहा सुनो, अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ। क्या बार बार पढ़ते क्या कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवा का समेत सुत नारी। सुने कि नहीं सुने? सुने ना? कभी इस पे गौर किया ये क्यों कहते हैं, बार बार क्यों पढ़ते हैं? हर 2-3 जुमले के बाद, हर एक अशार के बाद कहते हैं, है ना? कहते हैं नाथ सकल संपदा तुम्हारी अरे मैं सेवा का समेत सुत नारी। पंडित जी देखे तो हैरत में पड़ गए, बोले तुम मौलाना हो या पहले पंडित रहे हो? मैंने कहा असली मौलवी हूँ, असली मौलवी हूँ, ईमान वाला हो। मैंने कहा अर्थ बताओ, बात ना बनाओ। बोले क्या? मैंने कहा इसका खाली माना बता दो, क्योंकि सिद्धू हुआ सिद्धवाही वालों को समझा दो, सिद्धवाही वालों को बता दे, कम से कम ये भी तो समझे। कुरान और हदीस की रोशनी में तकरीरें आपने इन उलमा से तो सुन ही लिया, सुनी होगी। मुझसे कुरान से भी सुनो, हदीस से भी सुनो, रामायण भी सुनो, गीता भी सुनो, यथार्थ गीता भी सुनो, भविष्य पुराण भी सुनो, 18 पुराण सुन लो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान भी पढ़ते हैं, साथ में पुराण भी पढ़ते हैं, गीता भी कहते हैं। हम दोनों को इकट्ठा करके एक वहदानियत की, एक खुदा की वहदानियत की तबलीग करते हैं। जो बंदा एक खुदा की इबादत में कामयाब हो गया, उसकी दुनिया भी समझ जाएगी, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया भी समझेगी और आखिरत भी समझ जाएगी। तो पढ़ते थे, बोले मौलाना फिर से पढ़ो। मैंने कहा सुन लो, नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवा समेत सुत नारी। तो बोले मौलाना बताए बगैर जाएगा नहीं। मैंने कहा बताना पड़ेगा, अगर सिद्धवाही वाले पूछ लिए तो हम बताए दे कहां से, है ना? तो सिद्धवाही वाले ने कहा अच्छा। पंडित जी ने कहा अच्छा सुनो, सीधा साधा फंडा बताया, तवज्जो देना मेरी बात की तरफ। सीधा साधा फंडा बताया, हे मौलाना एक ईश्वर की बारगाह में भक्ति करने के लिए जब कोई मेरा मनुष्य व्यक्ति जाता है तो ये कहता है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हे मेरे मालिक जितनी भी चीजें जमीनों आसमान में सब तेरा और तेरे लिए। बेशक सुभान अल्लाह ऊंचा बोलो सब तेरा और तेरे लिए। मैंने कहा बस इतनी सी बात है। मैंने कहा पंडित जी ठहर जाइए, अब कुरान का ऐलान सुन लो। कुरान ने फरमा दिया, कुरान में रब ने फरमाया लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल सुभान अल्लाह तकबीर अल्लाहू अकबर या रसूल उधर भी बताया जा रहा कि कोई तो जमीन और आसमान को चलाने वाला है, और कुरान भी कह रहा जमीन और आसमान का कोई तो मालिक है। कौन है? अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ही के लिए। जमीन और आसमान के ऊपर नीचे जितनी भी चीजें हैं सब आ गई। ये टेंट, ये माइक, ये लाइट, ये कुर्सी, ये गाँव, ये सिद्धुआ, ये सिद्धुइया, अरे जो भी है बहरहाल पूरी जमीन कायनात में जितनी भी चीजें हैं सबका मालिक कौन? अल्लाह। अभी इधर तो पता चला कि कोई तो है, अभी ये नहीं पता चला था कौन है, कितने हैं। कौन है, कितने हैं? तो मैंने कहा पंडित जी ये तो पता चल गया कि कोई तो है संसार को चलाने वाला, कोई तो है सूरज को निकालने वाला, कोई तो है चंद्रमा को निकालने वाला, कोई तो है हवा को चलाने वाला, कोई तो है बारिश बरसाने वाला, कोई तो है धूप निकालने वाला, कोई तो है आंखों में रोशनी, अच्छा बोलो, आंखों में रोशनी देने वाला, कोई तो है हाथ में कुव्वत देने वाला, कोई तो है ज़बान में बोलने की ताकत देने वाला, कोई तो है कानों को सुनने की सलाहियत, कोई तो है सांसों को जिंदा रखने वाला। बेशक अब अगर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता।
एक बात और सुनिए, अगर नहीं होता तो सांस अंदर जाती बाहर न जाने कितने फटफटाए पड़े होते हैं। भाई कोई तो इस निजाम को चला रहा है, और तेरी जब सांस अंदर जा रही है फिर वापस आ रही है, इस पे कब्जा तो किसी का है। बेशक हमें रात आती है दिन आता है, रात जाती है दिन जाता है, ये निजाम चलाने वाला कोई तो। भाई बचपन में लड़का छोटा सा पैदा हुआ, 18 साल तक जवान हुआ, ये शादी में बच्चे, ये बच्चे में कच्चे, ये पोते पर पोते, नकल पोते, सकल पोते, सकल पोते, बड़ा पोते, ये कोई तो निजाम चलाने वाला। बेशक भाई है ना कोई है, ये लाइटों के अंदर कुमकुमी ये जान डालने वाला कोई तो है। अब पंडित जी बड़े हैरान हो गए, हमने पूछ लिया कितने, एक सादा सा फंडामेंटल समझ लेना, अगर 2 होते तो झगड़ा होता, 3 होते तो झगड़ा होता। ये कहता बारिश बरसाई जाएगी, दूसरा कहता ना। तीसरा कहता हवा चलेगी, तो जानते पहला कहता नहीं, अगर बारिश बरसाती है तो किसान का खेत में जो गेहूं है ये सब चला जाएगा। बोले अगर नहीं बरसाएंगे तो हमारे फलाने उनके खेत में पानी लगना है। यह 2 का फंडामेंटल खत्म हो गया। यकम द्वितीय प्रभा, यकम ब्रह्मा, द्वितीय दीना, नास्ते किंचन। ये किताब, ये कुरान, ये बुखारी, ये तिरमिज़ी, ये बैज़ावी, ये मुस्लिम इब्न माजा की बात नहीं है, हिंदू भाइयों की ग्रंथ की बात है। यकम ब्रह्मा, एक ही है ईश्वर, द्वितीय दूसरा नहीं है, बोलो बोलो बोलो, दूसरा नहीं है, नहीं है तो नहीं है, न दूजा है न तीजा है, न चौथा है न पांचवा है न छठा है न सातवां है, एक ही एक है। तब मैंने कहा था पंडित जी तुम्हारी किताब कह रही है, अथर्ववेद बोल रही है, यको जगदीश्वरा, साफ साफ लिखा हुआ है, एक ही है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला है। बेशक अब यार बात समझ में नहीं आई। अथर्ववेद बोली, ऋग्वेद बोली, यजुर्वेद बोली, सामवेद बोली, उपनिषद बोली, भगवद गीता बोली, अथर्ववेद बोली, सब बोले एक। तब आप कहेंगे मौलाना तुम्हें कुरान से लेके आओ। फिर मैंने कहा मौलाना सिराज साहब आप बताएं, तो बोले बड़ा सीधा साधा सिंपल सा सवाल कर रहे हैं, कुरान उठा लो। मैंने कुरान उठाया, फिर जब मैंने कुरान को खोला कहा मिल नहीं रहा, कहा थोड़ा और आगे बढ़ जा, मैं थोड़ा और आगे बढ़ गया, अलिफ लाम मीम से सियाकुल में आ गया, तिलकर रसूल में आ गया, लंतन में आ गया, वलमज़नून में आ गया, छठे में आ गया, सातवें में आया, आठवें में आया, नौवें में आया, 10वें में आया, 11वें में आया, 12वें पारे में आया। मैंने कहा मौलाना नहीं मिल रहा, कहा थोड़ा और बढ़ जा। मैंने कहा नहीं मिल रहा, बोले कहाँ खोल के बैठा है, मैंने कहा को 16वां पारा खोल के बैठा हो। तो अल्लामा साहब ने कहा नहीं आखिरी पारे में चला जा। बेशक अब जब मैं आखिरी पारे में गया, अम्मा यतसालून पड़ा, बोले नजर नहीं आ रहा, तो कहा थोड़ा और बढ़ जा, थोड़ा और बढ़ जा। जब मैं आखिरी स्टेप के करीब पहुंचा तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब आप फरमा दो कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह बोलो, अल्लाह समद, बोलो अल्लाह। अल्लाह अल्लाह कितने? एक, ईश्वर कितने? एक, मालिक कितने? एक। कुरान भी बोली है, अथर्ववेद भी बोली है, ऋग्वेद भी बोली है, यजुर्वेद भी बोली है। इधर भी एक तो झगड़ा किसका? बेशक अच्छा मोदी साहब ऐसे करने से मिलता है? अल्लाह देने वाला। हाँ तो इधर भी है, इधर भी है, अब झगड़ा किस बात का? झगड़ा तो नहीं है ना। अभी आपको और आसान कर दे। अच्छा बताओ मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा कितनों को दिल से समझ में आ नहीं आ रही, जरा हाथ उठा। फसाया भी बोला ना। बहुत अच्छा।
हाँ सुनिएगा, इधर भी एक, इधर भी एक। अब ये तो बात आपको समझ में आ गई, सिद्धूवाजी वाले सिद्धि बोली लगा दी। हाँ ये तो समझ में आ गई, कोई तो है और एक है। अब कैसा है कहो तो बता दे, मैं बात खत्म कर बताएं। कैसा है जिसके आगे सर झुकाया जाए वो हो तो कैसा? आई है अल्लामा साहब से पूछेंगे, इनसे पूछेंगे, ये तलबा है, ये हुफ़ाज़ है, मुझे तो नहीं पता, ये सब जवाब दे देंगे कि खुदा कैसा होता है। ये सब जवाब देंगे। आप कहेंगे मौलाना अगर इनसे पूछना होता तो चतुर्वेदी क्यों बुलाते? यही सवाल पूछा था तुलसीदास के दरबार में। तुलसीदास का भक्त आया, कहने लगा ना है ना प्रभु बताओ ना, जिसके आगे सर झुकाए वो हो कैसा, वो कैसा दिखता है? तो तुलसी ने कहा था, ए मेरे भक्त प्रिय सज्जन, तुम मुझसे पूछते हो? बोले हाँ, तुमसे न पूछे तो किससे पूछे, महान गुरु हो, तुम ही बताओ। तो तुलसीदास ने स्पष्ट लफ्जों में, साफ लफ्जों में जवाब दे दिया, कहो तो पढ़ दे। ये तो आपको पता चल गया कोई है, वो भी एक है, वो भी अल्लाह है, लेकिन कैसा है आपको मैं बताता हूँ। क्या तुलसी ने बड़े सोने अंदाज में अपने भक्त को कहा, ए मेरे भक्त तू मुझसे पूछता है तो सुन। क्या कहा? रामचरितमानस से खंड नंबर 117 में स्पष्ट लफ्जों में कह दिया, बड़ी सोनी बात कही है। क्या कहा? बड़ी प्यारी बात कही है। पूछने वाले ने पूछा, जिसकी हम इबादत करें, जिसकी हम पूजा करें, वो कैसा कैसा दिखता है? तो तुलसी ने कलम उठाया, मेरे भक्त तू मुझसे पूछ रहा है, अब मुझसे सुन ले, मैं बताना चाहता हूँ ईश्वर कैसा है, ईश्वर दिखता कैसा है, उसका जोग्राफिया कैसा है, वो कैसा होना चाहिए। तो तुलसी ने कलम उठा के लिख दिया। क्या लिखा मेरे मिल्लत के नौजवानों, जरा सहन नशी कर लेना, आगे चल के काम आने वाली बात है। कलम उठाया, लिख दिया। क्या लिखा? कि पद मिल चली, क्या कहा? पद बिन चलई सुनी बिन गाना, और कर बिन करे में करई विधि नाना। समझो कि ना समझो? समझो? पद कहते हैं पैर को, बिन कहते हैं बगैर, और चलने को तो आप जानते ही हैं। का ईश्वर वो है जो पैर ना रखे मगर चलने की कुदरत, बेशक सुभान अल्लाह, जो हाथ ना रखे मगर पकड़ने की आई है। बोलो, अल्लामा साहब से पूछो, नमाज पढ़ते हो, सजदा करते हो, रुकू करते हो, और हमारी अम्मा बहने से पूछो पंजवक्ता पढ़ती है? हाँ, पंजवक्ता या पढ़ती है? अरे मौलाना लोगों ने मेहरारू नहीं पढ़ती पंजवक्ता। इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं है, हमारे तो पढ़े थे। मेरे अजीज, मेरे प्यारो, ए मेरी माँ बहनों, तुम नमाज पढ़ा करो, कहने का मतलब ये है पंडित। और सोचा तो ये कि ये मेहरारू के पीछे पड़े हैं, और नौजवान का कितना पढ़ाते हैं मोदी साहब, और जाते मस्जिद बस, और जब मेला ठेला लगते बड़ी भीड़, कितना फर्क है, यही से आप अंदाजा लगा। अल्लामा सलमान अज़हरी का जो कहना वो गलत नहीं है। जब तक हमारी कौम अपने मियां को नहीं समझेगी, अपने देवर को, अपने बाबर को नहीं समझेगी, तो दर बदर तुम्हें रुस्वा किया जाएगा। आज भी वक्त है, तुम अपने मियां, अपने देवर को समझ लो। कसम खुदा की, तुम यहाँ भी कामयाब होगे, कल क़यामत में भी कामयाब होगे। बेशक सुभान अल्लाह। और तुम्हारे मियां और तुम्हारा देवर है क्या? कुरान से पूछो। कुरान का मतलब जल्दी जल्दी करा के कुरान का मतलब यह है, तुम्हें आने का मतलब यह है, तुम पूछो कुरान, ए कुरान बता मैं
किस लिए दुनिया में आया, तो कुरान कहती नजर आएगी, ए पूछने वाले, रब ने तुझे अगर भेजा है तो अपनी इबादत के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने फरमाया मैंने जिन्नात और इंसान को किस लिए? इबादत। अब बताओ सीने पे हाथ रख के कितने लोग इबादत करते हैं? हाँ? कितने लोग हैं जो 5 वक्त नमाजी हैं? कितने लोग हैं जो फजर पहुंचते हैं? कितने लोग हैं जो अजान के लिए जाते हैं? आप तो इमाम हैं। कसम खुदा की मेरे अजीज दोस्तों, तुम पर नमाजें फर्ज है, फर्ज। जिस खुदा की वहदानियत की तुम बात सुन रहे हो, उस खुदा ने तुम पर नमाजें भी फर्ज की। ये शादी कभी कभी फर्ज हो जाती है, ऐसा खतरा हो कि जिना लाहिक हो जाए। यह फर्ज है, और अगर माँ बाप देरी कर रहे तो माँ बाप भी गिरफ्त में आएंगे। इसीलिए शादियों को आसान करने का हुक्म दिया गया। बहुत सी ऐसी हमारी मां बहनें हैं जो कुंवारी बैठी रहती हैं, बाप कमजोर है, दहेज नहीं दे सकता जहेज, लेकिन आजकल का मुंह इतना लंबा फैलता है, वो बुलट चाहिए भटभटैया वाला, और खुद का दिल देखो वो भटा से भी ज्यादा फटफटा है। तो है मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर तुम्हारे जहेज की वजह से कोई लड़की कमानी बैठी है, या लड़की से कोई जिना या कुछ गलती हुई, उसके कुछ जिम्मेदार तुम भी हो, क्योंकि तुमने इतनी महंगी शादियां कर दी, तुमने इतनी जो है शादी आसान करने की बजाय इतनी बुलंदी भी पहुंचा दिया कि गरीब बेचारा शादी को नाम सुन करके डर जाता है, सिसक जाता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। ए मेरे अजीज दोस्तों, अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब रहता है तो कसम खुदा की थोड़ी सस्ती शादी किया करो, और अगर उसके घर में कोई शादी के लायक है तो इसी से बंटवारा करके अपने दोनों पड़ोसियों के साथ में शादी मुकम्मल कर दिया। तुम 10 खर्चा करना चाहते हो, आज करो, 2 अपने पड़ोसी को दे दो। आज तक किसी ने ऐसा किया? पड़ोसी का हक तुम्हें पता ही नहीं है। खुदा मेरे अजीज दोस्तों, उसके दिल पे जाकर के पूछो जिसके पास पैसा नहीं है, जो तुम दिखावा करते हो तुम्हारे पास क्या है, इतनी दौलत थी, वो लड़की भी सिसक सिसक कर रोती है, दिल में तमन्ना करती है, मौला मेरे बाप को कब पैसा मिलेगा, मेरी कब शादी होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये शादी मुस्तफा की सुन्नत है, अगर आपने इसको किया है अल्लाह सवाब भी देगा, अल्लाह बरकत भी देगा, अल्लाह इज्जत भी बचाएगा, अल्लाह गुनाहों से भी बचाएगा। अगर आसान कर दोगे, तुम्हारे देखने के देखने में, देखा दुखी में अगर पड़ोसी गरीब है तो हल्की शादी कर दिया करो। कहीं ऐसा न हो आपने बड़ी शादी की, आपने बेटी शादी की, आपने भारी शादी की, आपने दहेज का अंबार लगा दिया, आपने बहुत बड़ी शादी कर दी, लेकिन पड़ोसी गरीब है। अब बताओ उसके दिल से क्या बदल रही होगी, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। खुदा ये मुस्तफा का फरमान है, उलमा के अकबार है, शादियों को आसान करो। जब शादियों को आसान करोगे ना तो हमारी बहनें ये कमाली बैठी नजर नहीं आएगी, सबके घर आबाद होते नजर आएंगे। और आजकल की हमारी माँ बहनें और भाई रिश्तेदार अजीज व अकारीब, ये भी किसी से कम नहीं है। जब शादी होती है ना ससुराल में, इब्राहिम भाई के ससुराल में है ना शादी, हाँ, तो कितने खुश नसीब हैं इनके ससुर और सास कि दामाद ऐसा मिला कि बोले जलसा होगा, दामाद ऐसा मिला कि जलसा होगा, बोले मौलाना वही आएगा जो वहां आया था। अब आजकल के दामादर का पूछो, पूछबे ना करो, बोले सासू माँ सदिया हुई रही है, बोले काल लोगे, बोले कोट लेंगे, पैंट लेंगे, बोले तुम्हारी तरफ से, बोले अम्मा DCR फ्री, डीजे फ्री, नौकंटी, अरे वह क्या नौटंकी फ्री। कसम खुदा की है मेरी माँ और बहनों, अगर तुम्हारा दामाद
जलसा मेरी तरफ से, मिलाद मेरी तरफ से। ए मेरी सासू माँ, जो बेटी के नाश्ते पे खर्चा आएगा वो बेशक वाह बहुत उम्दा नसीहत माशाअल्लाह। कभी आपने ऐसा किसी को कहते हुए सुना? हाँ? पर्दा हमारी तरफ से, हाँ? जर्दा तुम्हारी तरफ से, हाँ? तो खुदा रे ये शादियों को आसान करो। और अगर आसान नहीं करोगे, एक बात और बता दे इसी जमन में, क्योंकि आपको मैं बता के जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहाँ पे पहुंचा था? कुल हु अल्लाह, कहाँ पे? कुल हु अल्लाह। अभी नहीं पहुंच पाए। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, अभी नहीं पहुंच पाए। मैं कुरान की बात सब बताते फौरन पकड़ लेते हैं, हदीस पढ़ रहे थे। तो सुनो, कैसा दिखता है, कैसा दिखता है। तो तुलसी ने क्या कहा था? मैं यहाँ पे था, पता भी नहीं चला। हाँ जी, हाँ, हमसे पूछो क्या पूछने वाले पूछो तो प्रभु जी बताओ ना कैसा दिखता है। तो बोले सुनो, पद बिन चली सुनई बिन गाना, अरे कर बिन करे करई विधिनाना, अरे बिन मोनी बागत बड़ा जोगी, ताली बिन बैठे से नैना बिनु देखा, गुली गुलो बिनु बास रसेजा। अब बताओ सिद्धवाही वाले समझे कि नहीं समझे? हाँ, नहीं समझे। अब अपन भाषा में बताए। तुलसी से पूछने वाले ने पूछा, बताओ ईश्वर कैसा है? तो बोले पद बिन चलई, ईश्वर वही है जो पैर न रखे मगर चलने की कुदरत। ईश्वर वही है जो बगैर पैर का चलने वाला हो, बगैर हाथ के पकड़ने वाला हो, बगैर ज़बान के बोलने वाला हो, बगैर कान के सुनने वाला हो, बगैर आँख के देखने वाला हो। अब मैंने जब इतना सुना, मैंने कहा अल्लाह मसीहा साहब अब रहनुमाई फरमा दे। तो बोले अल्लाह समीअ बसीर है। मैंने कहा समझ में नहीं आया। कहा सुनने वाला है, कुदरत रखने वाला है, देखने वाला है, पकड़ने वाला है, जानते हो। तो मैंने ये जुमला सुना, अब मुझे समझ में आ गया। मैंने कहा बताओ क्या अल्लाह के हाथ है? उन्होंने कहा मौलाना अपनी जबान को लगाम दे। अगर अल्लाह को हाथ साबित कर दिया तो तू ईमान से निकल जाएगा। अगर पैर बोल दिया तो ईमान से निकल जाएगा। अगर जबान कह दिया तो अल्लाह से ईमान से निकल जाएगा। अगर आँख कह दिया